Namaskar to all of you, and a very good evening. Welcome to another episode of Options and USDINR. ये जो दो combinations है, options and USDINR, it's very interesting, and the very fact that it is so interesting इसके कारण क्या है कि the participation from traders, specifically the retail traders, have increased phenomenally last 2-3 साल में. The question is, why have the traders found USDINR options so attractive? Large chunk of जो equity में trade करते हैं options में, क्योंकि options is काफी popular in the equity market in Nifty and Bank Nifty. Those same traders are finding USDINR market even more attractive. The reason is why, and we will cover that, and we will also cover what are the various strategies generally a trader uses. क्योंकि जो options market में, whenever a retail trader enters, they look to sell options. Why? Because option selling में premium मिलता है. Now that does not mean that is exactly the strategy which you can do every time, because आपको पता होगा, in any market in the world, including USDINR, there is no one strategy or two strategy which works all the time. अगर ऐसा होता तो financial market exist ही नहीं करता, because if you are doing a strategy, somebody is betting against you, then it just cannot be that only one person makes money, the other does it. तो इसके लिए financial markets में जैसे season change होता है, वैसे in financial markets the pattern of the markets, the mood of the market also changes continuously, और उसके हिसाब से आपको आपका strategy adjust करना पड़ता है. But generally, if you see the trades, let's say 100 trades of a option trader, they would like to sell more than they would like to buy. So generally what they say is that we would like to earn premium rather than pay premium. So keeping that in mind, we will be basically discussing the strategies which are done. Simple vanilla strategies, कोई complicated नहीं, because at the end of the day in financial markets, जितना आप अपना approach को simple रखोगे, analysis का, execution का, strategy का, the probability of making money increases. क्योंकि when your approach is simple, when you go wrong, you know where to correct. If it is too complicated, you don't know where things went wrong. So it is very important to keep your approach simple, strategy simple, and the execution quite simple. So with this, let's start the presentation. Can we have the slides? Yeah, thank you. Why USDINR is attractive for short-term traders? First, most important thing कि मैंने बोला कि the option trader है, especially the retail trader, उनको option बेचना है और premium earn करना है. Now, if you are going to sell options, options are like insurance. मतलब आप जब option बेचते हो, आप जैसे एक insurance company बन जाते हो, right? तो आप अगर insurance company बनते हो तो आपको premium earn होगा. So if you are selling options, the most important question that will come to your mind कि USDINR का कितना volatile है, क्योंकि अगर USDINR बहुत ज़्यादा volatile है, then selling options can be a dangerous thing. जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में it can move wide, right? But USDINR में खास बात है, वो खास बात ये है कि यहाँ पे RBI है, that is Reserve Bank of India, the central bank, and RBI very clearly have said in public forum quite a few times कि हम लोगों का target is not a price level, our target is volatility in the market. मतलब rupee is going to be dictated, जो USDINR का value है और जो rupee का let's say value है against the dollar, that will be driven by market forces. मतलब जो market में हो रहा है, जो global markets में dollar के साथ हो रहा है, उसका impact USDINR में ये उसके हिसाब से मूव करेगा. बट द वॉलेटिलिटी, मतलब कितना ऊपर नीचे इसका मूवमेंट होगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय आरबीआई. सो एंड हाउ दे एक्सरसाइज दैट व्यू in the market, they simply sell and buy in the market. So when the rupee starts to depreciate, matlab USDINR starts to move higher, they come into the market and sell dollars aggressively. And when the rupee is appreciating, matlab USDINR is going down, they come into the market to buy dollars. So keeping that strategy in mind, they ensure
दैट USDINR को जो वॉलेटिलिटी है दैट इज लो। एंड अगर ये हम लोग ये ग्राफ पे ध्यान देते हैं तो हम लोग को पता लगेगा कि USDINR ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2004 से 6 सेंट्रल बैंक गवर्नर के रेजीम के टाइम, हाउ द इंटरवेंशन हैज बीन। तो राजन के टाइम से द इंटरवेंशन हैज बिकम क्वाइट एग्रेसिव, बट सिंस मिस्टर दास टुक ओवर, सिंस देन द आरबीआई हैज बीन अ मेजर प्लेयर। मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से आरबीआई का इंटरवेंशन ऑन अ पर्टिकुलर डे कैन बी ओवर $1 बिलियन, क्योंकि आरबीआई जो ओटीसी मार्केट है, मतलब इंटरबैंक मार्केट है, उसके थ्रू इंटरवीन करता है। जो फॉरवर्ड्स और स्पॉट ट्रेडिंग है यूएसडीआईएनआर में, आरबीआई एक्सचेंज के थ्रू इंटरवीन करता है। और आरबीआई एनडीएफ के थ्रू, मतलब जो ऑफशोर में यूएसडीआईएनआर का ट्रेडिंग होता है, वहां पे भी इंटरवीन करता है। मतलब अगर सब इंटरवेंशन को मेजर किया जाए तो एवरेज में 1 बिलियन के ऊपर का डेली इंटरवेंशन आरबीआई करता है। मतलब इट जस्ट शोज, एंड दे बाय एंड सेल, इट्स नॉट दैट दे आर ओनली सेलिंग और ओनली बाइंग। हाँ, अगर देर इज अ कंटिन्यूअस डिप्रिसिएशन इन द इंडियन रूपी जैसे लास्ट ईयर था स्पेसिफिकली टिल सितंबर, तब ऑफ कोर्स आरबीआई वाज सेलिंग डॉलर्स मोर। यहाँ पे द पॉइंट इज मोर, मतलब इफ यू लुक एट द आरबीआई का इंटरवेंशन डेटा, और ये जो ग्राफ है इसमें भी आप अगर फोकस करोगे, द ब्लू लाइन इज द ग्रॉस इंटरवेंशन ऑन द बाई साइड एंड द रेड लाइन द ग्रॉस इंटरवेंशन ऑन द सेल साइड, दोनों ही हैं। तो इसके कारण दे आर ट्राइंग टू मैनेज वॉलेटिलिटी एंड दे हैव डन इट एक्सीडिंगली वेल। मतलब लास्ट 12 मंथ का अगर डेटा हम लोग उठा के देखें, और इंडियन रूपी का जो वॉलेटिलिटी है अगेंस्ट द डॉलर, उसको कंपेयर किया जाए द अदर 25 टॉप करेंसीज इन द वर्ल्ड, हाउ दे हैव बिहेव्ड अगेंस्ट द डॉलर, इंडियन रूपी in the last 12 months is one of the least volatile currencies. Very interesting. मतलब बाकी करेंसी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, ये वॉलेटिलिटी को इसके लिए आरबीआई टारगेट करता है क्योंकि करेंसी का इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी इज ह्यूज, इट्स नॉट लाइक अ स्टॉक। तो इसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस, ऑन कंज्यूमर्स इज मैसिव। तो उसका अगर कोई भी करेंसी बिकम्स टू वॉलेटाइल, जैसे इमेजिन इफ you were transacting in a very highly volatile currency like a Turkish lira, right? तो जो 80% अप या डाउन मूव करता है, तो वो सिचुएशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पुट अ वैल्यू ऑन योर प्रोडक्ट। मतलब आपको ये एज एन एक्सपोर्टर, व्हाट वैल्यू शुड यू कोट टू योर कस्टमर, एज एन इम्पोर्टर सेम प्रॉब्लम, और इवन एज अ कंज्यूमर। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्टेबल इकोनॉमी का करेंसी शुड ऑल्सो बी स्टेबल। That's exactly what RBI targets, and that is good news for option sellers, क्योंकि ऑप्शन कोई जब सेल करता है कोई भी मार्केट में, दे बेसिकली आर सेलिंग वॉलेटिलिटी, क्योंकि वॉलेटिलिटी जितना ऊपर जाएगा ऑप्शन का प्रीमियम उतना ऊपर जाएगा। तो आप कोई भी चीज को जब बेचते हो, मतलब शॉर्ट सेल करते हो, यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू फॉल, नॉट टू गो अप। So volatility falls, option price falls, and that's exactly what you are betting on. तो आप जब ऑप्शन सेल करते हो इन द मार्केट, कोई भी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन, यूएसडीआईएनआर ऑप्शन, क्रूड ऑयल का ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन, कोई भी अंडरलाइंग हो, whenever you sell options naked, you are basically selling volatility. और बाकी मार्केट्स में आरबीआई जैसा कोई प्लेयर है नहीं, क्योंकि वहां पे देयर इज नो सेंट्रल बैंक managing the show, but USDINR में RBI is there to control volatility. इसके कारण there has been so much of interest in USDINR options market from the retail and even institutions. और इसी का ही इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं इन द प्राइस एक्शन। एक अपवर्ड ड्रिफ्ट है, बट लुक एट हाउ इट कैन स्लिप इनटू अ रेंज फॉर वीक्स एंड मंथ्स। जैसे अभी USDINR 81 और 83 के बीच करीब करीब 4 महीने से है। इनफैक्ट उसको आप और नैरो कर सकते हो, 82 हाफ और 83 के बीच लास्ट 3 हफ्तों से है। सो people who are focusing on option selling, especially weekly options, they have made quite a lot of money. But again, I would like to warn you, कोई भी strategy is not evergreen. Please keep that in mind. And हर strategy में risk management essential है, मतलब stop loss, position size is essential. We'll come to that as we progress in the presentation. ये है volatility का एक नंबर। जैसे बैंक निफ्टी का एवरेज डेली volatility is 1.62%, निफ्टी का 1.25, यूएसडीआईएनआर का
0.25, मतलब इतना कम. और दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वाज सेइंग, आरबीआई मैनेजिंग द शो, ट्राइंग टू मैनेज वॉलेटिलिटी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यूएसडीआईएनआर ऑप्शंस में इतना इंटरेस्ट है. नाउ इस स्लाइड में हम लोगों ने कंपेयर किया है कि यूएसडीआईएनआर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच जनरली जो ऑप्शन, जो अगर हम लोग एटीएम, जो ऑप्शन एटीएम स्ट्रैडल है, मतलब एटीएम कॉल एंड पुट, दोनों अगर एक साथ बेचते हैं तो उसको बोला जाता है स्ट्रैडल. स्ट्रैडल शॉर्ट, वो स्ट्रैटेजी का नाम होता है स्ट्रैडल. तो निफ्टी का एटीएम का स्ट्रैडल, बैंक निफ्टी का एटीएम का स्ट्रैडल और यूएसडीआईएनआर के एटीएम का स्ट्रैडल 1 वीक टू एक्सपायरी. तो 1 वीक टू एक्सपायरी में मतलब जो वीकली ऑप्शन है उसका जो टोटल प्रीमियम इनफ्लो है, अगर उसको कंपेयर किया जाए कि हम लोग को कितना मार्जिन एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा, देन वी कैन गेट अ आइडिया एज टू विच इज गिविंग मी मोर बैंग फॉर द बक. मतलब कितना मैं एक्सचेंज को दे रहा हूँ और मुझे कितना प्रीमियम अपफ्रंट मिल रहा है अगर मैं जाके एक स्ट्रैटजी को बेचता हूँ. तो आपको अगर एज अ परसेंटेज में एक्सप्रेस करूँ तो USDINR is 12.28%, मतलब more than 12% compared to a little over 10% for Bank Nifty and around 8% for Nifty. मतलब आप जो मार्जिन दे रहे हो एक्सचेंज को, उसके सामने जो आपको एटीएम स्ट्रैडल को सेल करने से जो प्रीमियम इनफ्लो होता है वो बेटर है. तो आपका जो कैपिटल एलोकेशन है, जो कैपिटल का एफिशिएंसी है, वो USDINR मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है देन कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी. बट इसमें एक और चीज़ पे हम लोग को गौर करना पड़ेगा, वो ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा, इसमें कि सिर्फ रिटर्न मतलब जो मार्जिन और जो प्रीमियम का कंपैरिजन है सिर्फ यूएसडी का उसी में ही बेटर नहीं है. इफ वी कंपेयर the volatility for a bank nifty or nifty is much higher. मतलब even though you get a higher premium in absolute terms, but the probability of your straddle being expiring in loss is much higher because इसमें volatility is much higher in a nifty or a bank nifty. This is one of the major reason why a lot of these equity traders who trade options, they also trade USDINR options as well. Another factor, longer trading hours. मतलब equity में आप लोगों को पता है 9:15 से 3:30, जैसे अभी the equity market is closed. The currency market is still on. It is on till 5 o'clock. So it starts at 9, 15 minute पहले. It continues 1.5 hours after the equity market closes. So from 9 to 5, 8 hours का पूरा ट्रेडिंग का आपको एक स्ट्रेच मिलता है. और उसमें वी नो ट्रेडर्स हु एक्चुअली manage their participation in both the markets. मतलब they would focus on the equity market around afternoon, and once the equity market closes 3:30 के बाद they start to focus in the currency market. जैसे अभी you can actually switch your focus from equity to currency. So we have understood why. The most important thing in why is that जो मार्जिन का एफिशिएंसी है वो काफी बेटर है, और उसके साथ जो वॉलेटिलिटी है USDINR में वो काफी कम है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. और वो वॉलेटिलिटी लो होने के पीछे इट्स नॉट अ एक्सीडेंट, इट्स बेसिकली अ डिजाइन ऑफ whom? Reserve Bank of India. So this is a major reason why USDINR is finding so much of interest from the retail traders. अभी वाई समझने के बाद लेट्स अंडरस्टैंड ऑप्शंस. व्हाट आर द मैकेनिक्स ऑफ द ऑप्शंस. यहाँ पे विल बेसिकली ब्रश थ्रू. यहाँ पे बिकॉज इन दिस प्रेजेंटेशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यू ऑलरेडी नो द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस. कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या, ऑप्शन है क्या, उसका व्हाट आर द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द ऑप्शन प्राइस, and how USDINR impacts the price. That we are assuming that you are aware. But still हम लोग ये कुछ slides में we will go through that piece by piece. First most important thing, USDINR ऊपर जाता है. If you are betting on USDINR to rise, मतलब आपको अगर expectation है 83 अभी चल रहा है, 84 जाने वाला है एक हफ्ते के अंदर, तो फिर आप कॉल ऑप्शन उठाओगे, कॉल ऑप्शन को खरीदोगे इन USDINR.
एट द सेम टाइम आपको आपका अगर व्यू ये है कि 83 वाला 82 होने वाला है एक हफ्ते के अंदर, तो फिर आप पुट ऑप्शन खरीदोगे, राइट? तो उसी को ही अगर आप सेलिंग में आ जाते हो कि सेल कॉल, इसका मतलब है कि आप बेरिश हो, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूएसडीआईएनआर नीचे जाएगा, राइट? बाई कॉल में जैसे आपका एक्सपेक्टेशन है यूएसडीआईएनआर ऊपर जाएगा, सेल कॉल में जस्ट रिवर्स है, यू आर एक्सपेक्टिंग यूएसडीआईएनआर टू फॉल. Same with buy put. Buy put mein you are expecting USDINR to fall, but sell put mein where you are becoming a seller of the option, you are expecting USDINR to rise, right? अभी these are the factors जो option price को determine करता है, irrespective of the underlying. Same factors is there in Nifty and Bank Nifty. इसमें सिर्फ underlying का change वहाँ होता है. वो है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जो अननोन फैक्टर है इसमें से, राइट, ये चारों फैक्टर में से वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. और वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कॉन्सेप्ट है. ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है क्या? देखिए, एक ऑप्शन इज अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि आप व्हेन यू आर बाइंग अ इंश्योरेंस एंड व्हेन यू आर सेलिंग, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव, राइट? सो आप जब ऑप्शन सेल करते हो, मतलब आप एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को इशू कर रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका प्रीमियम ऑन द इंश्योरेंस को डिटरमाइन करता है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी, मतलब कितना चांस है ये जो इंश्योरेंस है वो इन द मनी एक्सपायर होगा. मतलब आप let's assume from an example of, or let's understand from an example from the real world. Let's say marine insurance. Let's take health insurance. तो health insurance में जो insurance company आपको प्रीमियम जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेचता है उसमें एक प्रीमियम होता है, राइट? दैट प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाय योर एज, आपका मेडिकल हिस्ट्री. ये सब क्यों पता कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू असर्टेन कि आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपका क्लेम, when what is the chance that you will actually place a claim on the insurance policy. मतलब आप बीमार पड़ोगे, आप हॉस्पिटलाइज हो गए और आपका एक क्लेम आएगा, इसका चांस क्या है? वो चांस को डिटरमाइन करने के लिए वो इतने सारे क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन आपसे मंगवाता है व्हेन यू आर बेसिकली एंटर इनटू द व्हेन यू आर बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी. सेम थिंग इन द मार्केट इज दैट जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो डिटरमाइन करता है कि कितना चांस है ये ऑप्शन का इन द मनी एक्सपायर होने का. बिकॉज व्हेन यू आर सेलिंग एन ऑप्शन, यू वांट द ऑप्शन टू एक्सपायर वर्थलेस और आउट ऑफ मनी. जब एक्सपायरी आएगा तो अगर मान लीजिए 83 का कॉल आप सेल कर रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन है कि जब एक्सपायरी होगा तो यूएसडीआईएनआर का जो स्पॉट प्राइस होगा वो 83 के नीचे होगा, राइट? सो इट शुड एक्सपायर वर्थलेस. तो अगर यूएसडीआईएनआर का फ्लक्चुएशन अगर इंक्रीज हो जाता है, जो वॉलेटिलिटी अप डाउन मूव, तो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है तो देन इट हैज अ हायर पॉसिबिलिटी दैट इट विल मेक दैट पर्टिकुलर ऑप्शन एक्सपायर इन द मनी. तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन इंक्रीजेस, आपका ऑप्शन प्रीमियम स्टार्ट्स टू राइज. क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है और यहाँ पे ऑप्शन सेलर है वो बोल रहा है कि बॉस अभी अनसर्टेनिटी ज्यादा है इन द मार्केट, इट कैन राइज 2% अप एंड 2%, इट कैन फॉल 2% इन अ वीक. तो मेरा जो वीकली ऑप्शन है उसका प्रीमियम अभी ज्यादा है, क्योंकि लेट्स से आज रात को फेड का मिनट्स है, तो हम लोग को पता नहीं कल कितना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है. तो मुझे ज्यादा प्रीमियम चाहिए अगर मुझे ऑप्शन बेचना है. तो ऑटोमेटिकली उसको एक भाषा के हिसाब से डिनोट किया जाता है, उसका नाम है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. इम्प्लाइड मीन मार्केट क्या वॉलेटिलिटी कोट कर रहा है, वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शन प्राइस से डिटरमाइन किया जाता है और उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है. 3%, 4%, 5%, 6%. यूएसडीआईएनआर में जनरली वो 3 से 8% के बीच हॉवर करता है. 8 के ऊपर भी गया है, जैसे लास्ट ईयर वो फेब मार्च के आसपास, बट जनरली उसके ऊपर वो सस्टेन करता नहीं है. 3 के नीचे भी सस्टेन करता नहीं है. 3 से 8 के बीच ये जनरली घूमता है. और उसमें भी अगर आप और नैरो करते हो, सो 3% से 6% के बीच उसका मैक्सिमम मूवमेंट है. तो ये एक चार्ट है जो बेसिकली रियलाइज वॉलेटिलिटी और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. आप ये सोचोगे अभी रियलाइज वॉलेटिलिटी क्या चीज है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी तो समझ गए. बेसिकली वो सिमिलर है बट उसमें कुछ अंतर है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ.
वॉलेटिलिटी आप लोगों को अभी समझ में आ गया कि फ्लक्चुएशन कितना है इन द यूएसडीआईएनआर, राइट? आप अगर मान लीजिए बिटकॉइन का लिए एग्जांपल, तो बिटकॉइन is exceptionally volatile, right? It's crazy. Or let's take natural gas, extremely volatile. But at the same time, let's take USDINR. उसमें काफी जो फ्लक्चुएशन है वो काफी कम है, मतलब वो अगर एक पर्टिकुलर प्राइस एम्पलीट्यूड में वो फ्लक्चुएट करता है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है इन यूएसडीआईएनआर जो ऑलरेडी कर चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं रियलाइज वॉलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, मतलब जो ऑलरेडी कर चुका है। बट जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स वोंट बी प्राइस्ड। वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या वॉलेटिलिटी हो सकता है। सो द फ्यूचर एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी जो है वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, राइट? सो वो ऑप्शन प्राइस से उसको डिटरमाइन किया जाता है कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो जैसे जैसे फ्लक्चुएट करता है उससे आप जो वॉलेटिलिटी है उसको डिटरमाइन कर सकते हो। आप कोई भी ऑप्शन का डिटेल्स ले लो, प्राइस ले लो, ऑनलाइन जाओ, कोटक सिक्योरिटीज का ही ऑप्शन कैलकुलेटर है, उसमें जाके डाल दो, या आपको और भी ऑप्शन कैलकुलेटर मिलेगा, जस्ट डू अ गूगल सर्च, वहां पे पुट द ऑल द डिटेल्स विद द प्राइस, यू विल इमीडिएटली गेट द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मतलब इट इज सेइंग कि एक साल के अंदर व्हाट इज द मार्केट करेंटली एक्सपेक्टिंग द वॉलेटिलिटी विल बी। अगर 6%, तो इट इज सेइंग कि एक साल के अंदर द ऑप्शन सेलर इज एक्सपेक्टिंग यूएसडीआईएनआर विल मूव 6% अप एंड डाउन। अप एंड डाउन इज इंपॉर्टेंट, नॉट इन वन डायरेक्शन, अप एंड डाउन। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसको फिर आप बैक कैलकुलेट करके जो आपका ऑप्शन का टेनोर है, वीकली हो, 2 हफ्ते हो, 3 हफ्ते हो, मंथली हो, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट मोटा मोटा जो नंबर हाँ होता है 3%, 6%, 8%, ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि एक साल में व्हाट इज, और इट इज नोन एज एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी, एक साल में यूएसडीआईएनआर का कितना फ्लक्चुएशन का चांस है एज पर द ऑप्शन सेलर इन द मार्केट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड, कि ये स्ट्रैटेजीज, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड इन द मार्केट बाय रिटेल एंड इवन इंस्टीट्यूशंस। यूएसडीआईएनआर में ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह 2 एक्सपायरीज है, मंथली एक्सपायरी और मंथ एंड एक्सपायरी, और उसके साथ है आपका वीकली एक्सपायरी। जो मंथली एक्सपायरी है उसका एक्सपायरी डेट का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जो थर्ड लास्ट बिजनेस डे है ना ऑफ द मंथ, थर्ड लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ, दैट इज द एक्सपायरी डे ऑफ द मंथली ऑप्शन। जैसे फरवरी का है वो ऑन फ्राइडे 24th, मार्च का है वो 28th ऑफ मार्च, 28 मार्च। वीकली का है बहुत ही सिंपल, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। जनरली इट इज फ्राइडे, अगर फ्राइडे छुट्टी है तो थर्सडे, मतलब द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक is your weekly option expiry, और weekly option has the highest volatility। उसके बाद monthly option, उसके बाद futures etc. So weekly option has the highest sorry not volatility, highest participation और volumes। So highest है weekly में, फिर monthly options पे, फिर futures में आता है। करीब करीब मैं बोलूँगा close to two-third से 70% of the entire market volume on NSE is basically from options, USDINR options। उसमें से लायन शेयर वीकली ऑप्शंस में, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में भी वीकली ऑप्शंस काफी पॉपुलर है, यूएसडीआईएनआर में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपका जो मार्केट का व्यू है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। और हाँ, इसमें जो एक्सपायरी होता है वो 12:30 बजे एक्सपायर होता है एट द आरबीआई रेफरेंस रेट। वो आरबीआई एक रेट फ्लैश करता है, वो 12:30 बजे वो आता है रेट, उसके हिसाब से एक्सपायरी होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वीकली और मंथली ऑप्शंस दोनों अवेलेबल है, तो कब वीकली ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहिए और कब मंथली ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहिए, राइट? वीकली ऑप्शंस तो जनरली हम लोग बात कर रहे हैं लेट्स से 7 से 10 दिन के अंदर जो एक्सपायर होने वाला है। 10 दिन मतलब लेट्स से नेक्स्ट वीक, जैसे आज वेडनेसडे है, राइट? सो नेक्स्ट वेडनेसडे, नॉट दिस
सॉरी नेक्स्ट वीक्स फ्राइडे, नॉट दिस फ्राइडे, क्योंकि ये फ्राइडे इज 24th ऑफ फेब, मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक्स फ्राइडे विच इज 3rd ऑफ मार्च। तो आज आज हम लोग अगर 3rd ऑफ मार्च का ऑप्शंस के बारे में बात करें और या उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेट्स से 7 से 10 दिन का एक्सपायरी या उसके कम का एक्सपायरी वाला ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस है, राइट। तो उसमें ट्रेड जनरली लोग तब लेते हैं जब ये व्यू है कि डॉलर रुपी विल बी इन अ रेंज फॉर सम टाइम, क्योंकि जो ऑप्शन प्रीमियम का डिक्लाइन है ना, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस का जो टाइम वैल्यू है ऑप्शंस में, उसका जो डिक्लाइन है वो सबसे रैपिड है 10 दिन के बाद। मतलब कोई भी ऑप्शन का एक्सपायरी अगर 10 से कम है, उसका जो डिक्लाइन है, जो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्लीड ऑफ द ऑप्शन, वो बहुत फास्ट है। और ये जो ग्राफ है वो यही दर्शा रहा है कि जैसे ये वर्टिकल हो गया, मतलब जो लॉस इन वैल्यू है पर डे, जो पहले अगर आप 10 दिन का एक्सपायरी को देखोगे, अगर आप मेरा कर्सर को फॉलो कर रहे हो, तो वो करीब करीब 6 पैसे के आसपास है पर डे। By the time I come to 5 days or less, it has jumped to 8, और उसके 5 दिन के बाद सीधा इंक्रीज करता है, बिकॉज जब जिस दिन वो एक्सपायर होगा उस वक्त टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस विल बी 0। ये इंपॉर्टेंट है, तो वो सीधा ब्लीड करता है। इसके लिए वीकली ऑप्शंस में पीपल लाइक टू सेल। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस बिकॉज समटाइम्स द वॉलेटिलिटी इज सो हाई दैट यू विल अवॉइड डूइंग दैट, बट जो वीकली ऑप्शन का ट्रेड है वो जनरली इज टू सेल अ straddle, sell a strangle, sell a iron fly। We'll come to the strategy, but this is the reason why option sellers वीकली ऑप्शंस को प्रेफर करते हैं। अभी ये 3 पॉपुलर स्ट्रेटजीज है, जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट आयरन फ्लाई और बटरफ्लाई। सो ये स्ट्रैडल क्या है? स्ट्रैडल है, लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज अ स्ट्रैडल। स्ट्रैडल है, आप बेसिकली ये एक सैंपल ट्रेड है, दिस इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन, दिस इज अ सैंपल ट्रेड। आज का ही सुबह का डेटा लेके ये बनाया गया कि 82.75 का 3rd मार्च का मैं अगर सेल करता इन द मॉर्निंग, तो मुझे करीब करीब 45 पैसे पर डॉलर, जो मतलब 45 पैसा मतलब 450 रुपया, अगर मैं इसको 45 पकड़ू तो 450 रुपया पर कॉन्ट्रैक्ट का मुझे प्रीमियम इनफ्लो होता इफ आई वुड हैव सोल्ड इन द मॉर्निंग। तो दिस इज नोन एज अ स्ट्रैडल, जस्ट ये नाम है, कन्वेंशन है स्ट्रैडल। तो इसमें एक चीज है कि ये इसमें जो पे ऑफ है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है, देखिए वो अनलिमिटेड है, जो गेन है वो लिमिटेड है, क्योंकि जो प्रीमियम इनफ्लो है 45 पैसे के आसपास, उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। देन यू हैव टू डिडक्ट द ब्रोकरेज एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। बट जो लॉस है, लॉस पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, क्योंकि ये अनहेज स्ट्रेटजी है, आप कॉल एंड पुट दोनों बेच रहे हो, तो इट कैन लेट्स से यूएसडीआईएनआर मूव्स बिग इन ईदर साइड, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। बट इसका एक सिनारियो एनालिसिस है, जैसे हम लोगों ने 82.75 का ऑप्शन बेचा, तो अगर ये देखिए आज 44 पैसा के आसपास था फ्राइडे, अगर ये मान लीजिए यूएसडीआईएनआर 82-80 के आसपास ही रहता है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फ्लैट रहता है, तो फिर देखिए ये जो ड्रॉप है ना बिटवीन फ्राइडे एंड मंडे इज ह्यूज। इसको ना काफी सारे जो ट्रेडर्स है, ये मैं ये जो बॉक्स है 82-80 और ये फ्राइडे मंडे, ये बॉक्स पे आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको ये दिखेगा द ड्रॉप। इसके लिए काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स है हु डू वीकेंड प्ले, मतलब वो फ्राइडे जाके बेचते हैं और मंडे या ट्यूसडे और हो सकता है वेडनेसडे तक भी वो काट लेते हैं। जनरली ट्रेडर्स डोंट कैरी पोजीशंस ऑन द एक्सपायरी डे फ्राइडे, क्योंकि उतना प्रीमियम होता नहीं है, और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी मूव हो जाता है देन इट कैन क्रिएट बिग इश्यूज। तो बाय वेडनेसडे मैक्स थर्सडे दे स्क्वायर अप। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका व्यू ऑफ द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब यूएसडीआईएनआर कितना वॉलेटाइल होगा, अगर अगर व्यू ये है कि वॉलेटिलिटी उतना होना नहीं चाहिए, तो देन दिस स्ट्रेटजी मेक सेंस। ये था स्ट्रैडल।
इसका ही एक ऑल्टरेशन है स्ट्रैंगल। मतलब इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा रूम और मिलेगा एज अ ऑप्शन सेलर, जो ब्रीदिंग स्पेस है वो थोड़ा सा और मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे 80 टू 75, जैसे वहां पे 80 टू 75 का कॉल एंड पुट दोनों बेच दिया, तो जैसे यूएसडी आना स्टार्ट्स टू मूव अप डाउन, 15 पैसा नीचे 15 पैसा ऊपर, तो आपका मार्क टू मार्केट आना चालू हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि 83.25 का कॉल और 82.50 का पुट, तो एक आपको रेंज मिल गया, नॉट अ पॉइंट। जैसे 82.75 एक एक पॉइंट था, यहाँ पे आपको एक रेंज मिल गया। वो रेंज में अगर यूएसडी आना मूव करता है तो आपको उतना मार्क टू मार्केट का इम्पैक्ट आएगा नहीं। अगर फ्लैट रह गया तो यू विल मेक मनी। तो नेचुरली बिकॉज यू आर टेकिंग लेसर रिस्क, आपका प्रीमियम इनफ्लो जो है वो कम है, 17 पैसा। जैसे वहां पे था करीब 45 पैसा, यहाँ पे 17 पैसा है, क्योंकि अभी करंट जब सुबह में ये प्राइस लिया था तब 82-80 के आसपास था, जो 3 मार्च का फ्यूचर्स था, तो इसलिए 45 पैसा ऊपर और 45 पैसा नीचे वो आपका रेंज था, एक एरिया ऑफ कंफर्ट था। इसके लिए आपका प्रीमियम इनफ्लो कम है। तो इसका जो पे ऑफ है वो इसके हिसाब से आप देखिए, जैसे एक टेबल टॉप बन गया ऑन द पे ऑफ। मतलब आपका ये रेंज में अगर अगर होता है तो आपको फ्लैट आपको 17 पैसे और 170 रुपया पर कॉन्ट्रैक्ट का इनफ्लो होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इन केस ये फट गया तो लाइक स्ट्रेटजी अनहेज स्ट्रेटजी, मतलब लॉसेस कैन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली अनलिमिटेड। तो ये अगेन है सिनारियो एनालिसिस है, वही मैं देखिए आप फ्राइडे मंडे ट्यूसडे कैसे ये ड्रॉप होता है। अगर डॉलर रुपी स्टेज फ्लैट, डेड फ्लैट बिटवीन फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे, आपका प्रीमियम कैन डिक्लाइन सब्सटेंशियल। इसके लिए काफ़ी पॉपुलर है बिटवीन फ्राइडे एंड ट्यूसडे के बीच। अभी हम लोग आते हैं फ्रॉम अनहेज स्ट्रेटजीज टू हेज स्ट्रेटजी, क्योंकि हेज स्ट्रेटजी भी काफ़ी पॉपुलर है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग ऑफ। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट इज नियरली हाफ ऑफ एन एटीएम स्ट्रेटजी, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। दूसरा, इट इज़ अ हेज स्ट्रेटजी, मतलब अनलिमिटेड लॉस का रिस्क नहीं। और तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये यूएसडीएनआर के लिए खास ही ये जो क्वालिटी है यूएसडीएनआर मार्केट के लिए खास इंपॉर्टेंट है, वो है कि यूएसडीएनआर में ना काफ़ी बार ये देखा गया है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। मतलब अगर एक रेंज में है, जैसे अभी 82 हाफ और 83 के बीच है लास्ट 2-3 हफ्तों से, और फिर लेट्स से ये ब्रेकडाउन दिया, 82 हाफ के नीचे दिया या 83 के ऊपर दिया, तो लगेगा कि अभी फटेगा या ये घुस जाएगा, राइट। बट ये काफी बार ये देखा गया है कि ब्रेकडाउन के बाद ना 2-3 दिन के बाद वो वापस रेंज में आ जाता है। वो हो सकता है आरबीआई का इंटरवेंशन आ जाए, कोई भी फैक्टर हो, मगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन काफी बार होता है यूएसडीआईएनआर में। तो आप अगर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को बेचते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो आप ऑफकोर्स एक अनहेज स्ट्रेटजी में, जहाँ पे अनलिमिटेड लॉस का चांसेस है, आप होल्ड नहीं करोगे। बट आपका अगर आयरन फ्लाई है, जो इस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, उसमें आप इजीली होल्ड कर सकते हो टिल एक्सपायरी। तो ऐसा काफी बार हुआ है, जो हम लोगों ने ट्रेड रिकमेंडेशन दिए हैं, तो वो ड्यूरिंग द वीक एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, बट बाय द टाइम द एक्सपायरी हैपेंड ऑन फ्राइडे, द मार्केट केम बैक इनसाइड द रेंज एंड वी मेड मनी। सो ये थर्ड बहुत बड़ा एडवांटेज है आयरन फ्लाई का, कि फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ये आपको बेनिफिट दे सकता है, विच अ स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल विल गेट स्टॉप्ड आउट, क्योंकि विदाउट स्टॉप तो ट्रेड कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या है कि आपका जो ट्रेड है वो बहुत ही सिंपल है। आप एक बेसिकली एटीएम स्ट्रैडल को बेच रहे हो, मगर उसमें अनलिमिटेड रिस्क है, तो आप थोड़ा सा प्रीमियम देके, जो एटीएम स्ट्रैडल से जो प्रीमियम आया इनफ्लो हुआ 82-75 का, राइट, वही प्रीमियम देके आप उससे कुछ प्रीमियम देके आप एक स्ट्रैंगल को खरीद रहे हो। क्योंकि एटीएम स्ट्रैडल आप जब सेल किया था, आपको याद होगा, आपका इनफ्लो था इन द मॉर्निंग अराउंड 45 पैसा। आप एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज
कि मुझे 45 पैसा नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा उसमें से प्रीमियम ये मार्केट को वापस कर देता हूँ और उससे एक हेज ले लेता हूँ कि मुझे अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए, तो आपने एक स्ट्रैंगल खरीद लिया, तो आपका नेट इनफ्लो रहा करीब 32 पैसा के आसपास। अगर फटा और वैलिड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के साथ फटा तो आपका मैक्सिमम लॉस 18 पैसा है। उसमें भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट लेट्स से यू डोंट हैव अ स्टॉप, 18 पैसा आपका मैक्स लॉस होता है इस ट्रेड में इन द मॉर्निंग, और आपका मैक्स प्रॉफिट होता है 32 पैसा। 32 पैसा अगर ये 82.75 में ही एक्सपायर होता तब। और इसमें ये देखिए मार्जिन इसका 1700, और आप अगर स्ट्रैडल का अगर मार्जिन देखोगे 2700। तो ये तीन जो बेनिफिट है, इसी कारण आयरन फ्लाई काफी पॉपुलर है आपका इसमें आपका यूएसडीआईएनआर में। एक तो इट इज हेज्ड, दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लेस, एंड थर्ड ये फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में काफी काम आता है। तो इसके लिए इसका जो पे ऑफ है ये ऐसे है, स्ट्रैडल जैसा ही है बट अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, तो इट इज एज इफ ब्रोकन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, ठीक है, वीकली ऑप्शंस वी अंडरस्टूड कि ऑप्शन सेलर के लिए काफी इंटरेस्टिंग एक प्रोस्पेक्ट है, इसके कारण ये वॉल्यूम्स में डोमिनेट कर रहा है। तो मंथली ऑप्शंस का तो कुछ यूज होगा ना, ऑफ कोर्स होगा। जो मंथली ऑप्शंस है वो बेसिकली दो सिचुएशंस में वो यूज होता है उसका। एक है आपका डायरेक्शनल बेट, मतलब आपका व्यू ये है कि अभी 83 के आसपास है ये डॉलर रुपी, और लास्ट 4.5 महीने से ये 80 एक नैरो रेंज में है, और ये अपसाइड ब्रेकआउट करेगा 85 के तरफ जा सकता है। तो आप क्या करोगे, अब ये बोलोगे मुझे फ्यूचर्स नहीं खरीदना, क्योंकि फ्यूचर्स में अनलिमिटेड रिस्क है, अगर मैं गलत हो गया तो मुझे भारी लॉस हो सकता है ऑन लॉन्ग फ्यूचर्स। तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीद लोगे या कॉल स्प्रेड कर दोगे, कि बोलोगे कॉल में ज्यादा प्रीमियम है तो मैं थोड़ा सा उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक कॉल खरीदता हूँ एट द मनी और आउट ऑफ मनी का कॉल सेल कर देता हूँ, तो वो है डायरेक्शनल बेट। सिमिलरली आपका व्यू ये है कि 83 वाला 80 में आ जाएगा, तो आप पुट खरीद लोगे या पुट स्प्रेड कर लोगे। तो ये जो डायरेक्शनल बेट्स है ये मंथली ऑप्शन के थ्रू जनरली एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि इसमें जो टाइम वैल्यू का डिके है जो हम लोग डेटा से देखेंगे वो काफी कम है, क्योंकि वीकली ऑप्शन में फास्ट होता है। जैसे लास्ट 6-7 दिन के बाद वो बहुत ही रैपिडली जो टाइम वैल्यू है वो इरोड होता है। तो आप अगर 2 हफ्ता या उससे ज्यादा वाला एक्सपायरी ऑप्शंस है तो आपको वो जो इरोजन है टाइम वैल्यू का वो काफी स्लोली होगा, अज्यूमिंग द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी स्टेज फ्लैट। दूसरा है कि लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा, ये क्या है हम लोग उसमें आने वाले स्लाइड्स में इसको कवर करेंगे। पहले डायरेक्शनल बेट्स जो मैं बताया, बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड, मतलब अपसाइड या डाउन साइड का आप उससे, तो आपको एक ऑप्शन चाहिए जिसका टाइम वैल्यू इरोजन कम हो, तो उसमें आप मंथली ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। वेगा, वेगा क्या है, वेगा इज बेसिकली जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, हाँ हम लोग बात किए ना, वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो कंटिन्यूअसली वो फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, राइट, प्राइस की तरह। तो वो जो फ्लक्चुएशन है वो प्राइस को इम्पैक्ट करता है। तो वो जो सेंसिटिविटी है ना, मतलब अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 6% वाला 7% हो गया या 6% वाला 5% हो गया, तो प्राइस, ऑप्शन प्राइस कितना मूव होगा इन दैट इंस्टेंट, वो जो सेंसिटिविटी है उसको वेगा बोला जाता है। एक ग्रीक टर्म है, कोई हाथी घोड़ा है नहीं, इट्स वेरी सिंपल, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का जो फ्लक्चुएशन है उसके हिसाब से ऑप्शन प्राइस का कितना फ्लक्चुएशन होगा, तो उसको बोला जाता है वेगा, VEGA, वेगा, राइट। तो हम लोग जो बोलते हैं कि लॉन्ग वेगा, लॉन्ग वेगा मतलब आपका बेट ये है एज अ ऑप्शन ट्रेडर कि जो मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, मतलब जो ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर वॉलेटिलिटी इन USDINR, मतलब द फ्लक्चुएशन, इट इज गोइंग टू राइज, मतलब वो इंक्रीज करेगा। तो अगर इंक्रीज करेगा तो आप क्या करोगे, ऑप्शन खरीदोगे, क्योंकि ऑप्शन प्राइस इंक्रीजेस एज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ऑप्शन प्राइस डिक्रीजेस व्हेन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिक्लाइंस।
सो आप अगर शॉर्ट वेगा का अगर करोगे तो ऑप्शन को बेचोगे, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये जनरली जो वेगा प्ले होता है वो मंथली ऑप्शन के थ्रू किया जाता है, कि उसमें आप टाइम वैल्यू का जो थीटा है उसका इम्पैक्ट देखना नहीं चाहते हो, सिर्फ वेगा प्ले करना चाहते हो, तो फिर मंथली ऑप्शन इज अ गुड चॉइस। ये है बेसिकली आपका वेगा। ये जो है कि कितना सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन। तो देखिए 10 दिन के बाद जो ऑप्शंस का एक्सपायरी है, मतलब 10 या कम जो ऑप्शंस का एक्सपायरी है, उसमें सेंसिटिविटी कितना फटाक से गिरता है। इसके लिए 10 या कम जो एक्सपायरी है, मतलब जो टाइम टू एक्सपायरी है, वो ऑप्शंस थीटा प्ले के लिए बेस्ट है, मतलब टाइम वैल्यू प्ले या सेलिंग ऑप्शन उसके हिसाब से वो बेस्ट है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी वीकली वाला सेक्शन में कवर किया। बट मंथली में व्हेन यू आर प्लेइंग वेगा, मतलब जब आपका बेट्स ऑन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, तब 10 दिन से ज्यादा बेटर, 2 हफ्ते से ज्यादा जो एक्सपायरी है उसमें फोकस करना मेक सेंस। और एक चीज और है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में, कि यूएसडीआईएनआर में जैसे निफ्टी में, तो हम लोग अगर निफ्टी से कनेक्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे निफ्टी में ये देखा गया है, जब निफ्टी में मतलब इक्विटी में जब सेल ऑफ आता है ना, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी राइजेस, तो ऑप्शन प्राइसेस गो अप क्वाइट फास्ट। जो पुट है वो काफी फास्ट इंक्रीज करता है। सिर्फ ये नहीं कि वो इन द मनी का द प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग विच इज डेल्टा, बट जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो विक्स है, जो निफ्टी का विक्स है वो काफी फटाक से इंक्रीज होता है व्हेन द मार्केट फॉल्स। ये विक्स इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यूएसडीआईएनआर में क्या है ना, उल्टा है। यूएसडीआईएनआर में ये देखा गया है कि जब यूएसडीआईएनआर ऊपर भागता है बहुत फास्ट, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी राइजेस, क्योंकि जब निफ्टी गिरेगा तो यूएसडीआईएनआर हैज अ टेंडेंसी टू गो अप, जनरली वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो implied volatility in USDINR rises when the prices go up. Implied volatility in USDINR falls when the prices come down. Generally, इसमें भी variations है, but generally I am saying this is the case. तो इसके लिए when people से कि यहाँ पे मुझे लॉन्ग इम्प्लाइड वॉलिटी करना है, लॉन्ग वेगा करना है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ेगा यूएसडीआईएनआर में, तो वो बेसिकली हिंट कर रहे हैं कि देयर इज अ चांस ऑफ यूएसडीआईएनआर मूविंग हायर and vice versa for short. तो keep this thing in mind. Again, आपका जो short वेगा इसमें भी हो सकता है, they are expecting the USDINR to be in a range, right? अगर रेंज में वो चला जाएगा तो आपका implied volatility will decline और accordingly the option premium will fall. But अगर वो upside में bet कर रहा है, that is long वेगा, तो generally they are saying, जैसे अभी now the implied volatility in the market is around 4.3 4.4। अगर कोई ट्रेडर आके बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक महीने के अंदर ये 6% जाएगा, एंड यूएसडीआईएनआर हैज बीन इन अ रेंज बिटवीन 82 to 84 लास्ट 4.5 महीना, then he's basically saying that USDINR will break out above 83 and move higher towards a new all-time high. So this is the case with USDINR. ये एक लॉन्ग वेगा है, क्योंकि आप जब ऑप्शन खरीदते हो तो यू बिकम लॉन्ग वेगा, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस इंक्रीजेस एज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस, तो आप खरीदोगे ही तो आपका लॉन्ग वेगा का ट्रेड बन जाएगा। तो एक ट्रेड होता है, जैसे हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे थे, यहाँ पे है बाई स्ट्रैडल, जस्ट उल्टा, बाई स्ट्रैंगल। So with this we have come to the end of the presentation. यहाँ पे बिफोर आई ओपन द फ्लोर टू द क्वेश्चंस, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा। वो है कि यहाँ पे मैंने 3 सिंपल स्ट्रेटजी के ऊपर ही फोकस किया, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन फ्लाई, 2 अनहेज्ड 1 हेज्ड। मार्केट में काफी सारी स्ट्रेटजीज है और उसका नाम भी अनगिनत है। देखिए आप जब एक चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना वो अपना अप्रोच जो है ना बहुत सिंपल रखता है। एंड जनरली आप अगर स्टार्ट कर रहे हो इन द ऑप्शंस मार्केट, एंड आप अगर ऑलरेडी करते भी हो, राइट, if you keep your strategy simple now, if you can make money from a straddle, strangle or a iron fly, that is enough. You don't need to complicate it and make 10 legs, 9 legs, because आप जितना उसमें legs increase करोगे, एक तो आपको execute करने में प्रॉब्लम आएगा,
तो आपका इम्पैक्ट कॉस्ट कैन राइज. दूसरा, अगर वो पोजीशन इज गोइंग इन अगेंस्ट यू, then you won't know how to manage the risk. तो इसके लिए keep your trades, keep your strategies simple. And what I've seen from my uh, almost I would say 17 years of experience in the market. In fact, yeah, upper 19 years of experience in the market, that people who keep their strategies simple, they have a higher probability of making money. So इसके लिए I know social media में काफी because to get viewership, you see a lot of videos where people do very complicated trades. मेरा सजेशन ये रहेगा, यू स्टिक विथ सिंपल ट्रेड्स. स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये आपका आयरन फ्लाई जो हेज्ड है. और ये ट्रेड भी जनरली देखा जाता है इन द मार्केट कि इंट्राडे में भी देयर आर लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स जो इंट्राडे में स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल को शॉर्ट करते हैं. मतलब लेट्स से दे विल शॉर्ट अराउंड द मॉर्निंग टाइम एंड कवर बाय नाउ. सो ये ट्रेड्स भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि अभी द ब्रोकरेजेस हैव रियली कंप्रेस्ड एंड टू द पॉइंट ऑफ ऑलमोस्ट जीरो, स्पेशली फॉर इंटरडे ट्रेडिंग. तो इसके लिए दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज पहले ये प्रॉप के साथ काफ़ी पॉपुलर था, अभी वो रिटेल में भी पॉसिबल है बिकॉज द ब्रोकरेजेस हैव कम डाउन ड्रामेटिकली. So that is the reason. But generally stick with these three kind of simple strategies and observe the market behavior, form a view, उसके हिसाब से आप अपना strategy बनाओ. With this, I'll open the floor to questions. You can type your questions on the comment box. There's a question from Mr. Sridhar. Please suggest an intraday strategies due to the RBI difficult to trade call put spread. Yes, क्योंकि generally directional bets in USDINR is very time specific. मतलब, or rather I would say theme specific. जैसे आज रात को एक मेजर इवेंट है, राइट? तो आपका अगर व्यू है कि द चांस ऑफ अ ब्रेकआउट इज हायर, तो आप एक कॉल स्प्रेड बना सकते हो क्योंकि कॉल स्प्रेड इज अ हेज स्ट्रेटजी. उसमें जो आपका टोटल प्रीमियम आउटफ्लो है वही आपका मैक्स लॉस है. यू कैन ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस इन बिटवीन एंड रिड्यूस दैट कॉस्ट. तो इसके लिए इंट्राडे में श्रीधर जी, द पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन द व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. जनरली अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि इट विल बी क्वाइट, तो अ लॉट ऑफ पीपल डू व्हाट दे सेल अ स्ट्रैडल. बट अगेन दीज आर अनहेज स्ट्रैटेजीज. इसमें आपका पोजीशन साइज शुड बी स्मॉल विच यू कैन मैनेज एंड इट हैज टू हैव अ स्टॉप लॉस. तो इंट्राडे में एडवांटेज ये है, अगर एक अचानक ब्रेकआउट आ गया या ब्रेकडाउन आ गया तो आपका पोजीशन को मैनेज कर सकते हो, उसमें ओपनिंग गैप्स नहीं होता है. इसके लिए इंट्राडे में लॉट ऑफ पीपल डू अ short straddle or a short strangle. And also आपको अगर लॉन्ग खेलना है या शॉर्ट खेलना है, instead of doing futures, what you can do, you can buy a in the money call or in the money put. इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अपार्ट फ्रॉम द प्रीमियम आउटफ्लो रहेगा, सेकेंड चीज है कि इम्पैक्ट जो लिक्विडिटी है वो कम हो सकता है. बट एडवांटेज इज दैट कि आपका जो मार्जिन है, the amount of margin which you will pay, let's say 3% के आसपास अगर आपका मार्जिन है ऑन USDINR का फ्यूचर्स, आपका जो प्रीमियम रहेगा इन द मनी कॉल और पुट विल बी मच लोअर. एंड सेकेंडली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इन अ वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो वेयर यू आर अनेबल टू स्क्वायर अप योर ट्रेड, और लेट्स से आपका इंटरनेट कनेक्शन चले जाए और यू आर नॉट एबल टू स्क्वायर अप द ट्रेड, एंड नेक्स्ट वो ऑटोमेटिकली वो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग इट ओपन्स विद अ बिग गैप अगेंस्ट यू. तो इन अ वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन योर लॉसेस इज लिमिटेड अप टू द प्रीमियम व्हिच यू हैव पेड. तो इसके लिए एज अ ऑल्टरनेट टू बाइंग फ्यूचर्स और सेलिंग फ्यूचर्स, यू कैन do a in the money call or a in the money put trade. This is something to keep in mind as an alternate to futures. But intraday के लिए, depending on the view, you can either choose a directional trade or look at to short straddle strength. But again, short straddle strength में आपको premium
बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा. बट एज आई सेड कि अभी तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हैज़ कम डाउन सो ड्रामेटिकली, इवन अ 2-3 पैसा भी लोग को अगर मिलता है, दे लाइक टू डू दैट काइंड ऑफ अ ट्रेड. बट अगेन द व्यू हैज़ टू बी देयर कि आज आपका क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट. Next question है from Mr. Kishore. What is a strangle and a straddle? Assuming that you have not been there when you are discussing that, मैं हल्के से बता दूंगा. ये actually straddle मतलब है कि you are selling a at the money call and put together. Strangle means you are selling out of money call and put. ये both unhedged strategies हैं. On it is done with the expectation that USDINR एक range में रहे. There's a question from Mr. Ashwant, he's saying option selling strategy, you are a directional trader. देखिए मार्केट में क्या है ना, it's like it's war. When you are trading, doesn't matter which market and which part of the world, you have basically entered the war zone, right? So वहाँ पे like a soldier आपके पास हर तरीके का वेपन होना या अस्त्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द वॉर, the the size of your enemy, you have to use various weapons. तो इसके लिए it is good to know various kinds of strategies, directional, नॉन डायरेक्शनल, जो हम लोगों ने अभी बात किया, रेंज बाउंड मार्केट, उसमें क्योंकि यूएसडीआरआर ज्यादातर रेंज में रहता है और सडनली एक मूव आता है, तो इट्स बेटर टू हैव अ मिक्स. एंड सिर्फ यूएसडीआरआर के लिए नहीं, ये फॉर इवन इट्स एप्लीकेबल फॉर इक्विटी एज वेल. Uh, there is a question that how to track RBI movement on USDINR. देखिए RBI का जो इंटरवेंशन होता है ना, वो जब इंटरवेंशन हो रहा है, इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट बिकॉज दे डोंट कम आउट एंड से. वो मार्केट का टॉक या बाद में फ्रॉम प्रेस रिपोर्ट्स वी गेट टू नो. But price action से भी, because over a period of time watching the market for the past 1 decade, एक पता चल जाता है कि प्राइस बिहेवियर से कि शायद आरबीआई का इंटरवेंशन हो रहा है. जैसे अभी आरबीआई का देयर इज अ टॉक गोइंग ऑन दैट आरबीआई इज इंटरवीनिंग नॉट जस्ट ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, दे आर आल्सो इंटरवीनिंग द ऑफशोर मार्केट. इसके कारण 83 के ऊपर जा नहीं पा रहा है यूएसडी आना. तो जिस दिन इसके ऊपर ये जाएगा, शायद एक बड़ा ब्रेकआउट आ जाए. Next question is, can you suggest any strategy builder with payoff graph for USDN? Actually, yes. ये जो strategy builder है ना, we have started. It will be available in the Kotak Securities app, and you'll be able to do the see the various payoff graphs in strategy builder. आपको अगर खुद से बनाना है, how I did it was I did a bit of coding. I did it on VB, basically विजुअल बेसिक जो एप्लीकेशन है आपका एक्सेल में, उसको यूज करके फिर ब्लैक एंड शोल्स का फॉर्मूला जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको डाल के आप बना सकते हो. अदरवाइज इट विल बी अवेलेबल इन सम टाइम on the Kotak Securities app and website itself. So you can actually see live the payoff graph, कैसे एक एक वेरिएबल चेंज करने से उसका payoff चेंज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. There's a question from Wolf Trader कि 11th month low forex reserve will not be. देखिए जो FX reserve है ना, this is a function of two things. एक है RBI का intervention और दूसरा है आपका valuation gain or loss. मतलब RBI holds non-dollar currencies as well, जैसे यूरो, पाउंड. We don't know exactly the composition because RBI वो officially बताता नहीं है, सिर्फ बोलता है कि मेरे पास करेंसी है, बेसिकली फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, मेरे पास फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स है, गोल्ड है. तो ये जो नॉन डॉलर करेंसी है, जब डॉलर अप्रिशिएट करता है, गोल्ड प्राइस जब गिरता है, तो फिर इसका एक वैल्यूएशन लॉस आता है. तो लास्ट ईयर वी सॉ बिग hit to the FX reserve because of the strength in the dollar. It is not RBI intervention but a strength in the dollar. जैसे लास्ट 3-4 महीना में, especially from October onwards, RBI का FX reserve has jumped significantly. तो इसके कारण, so it's not at the 11th month low, it has jumped. So
बिकॉज ऑफ विच तो uh, ये जो एक लार्ज पार्ट ऑफ द गेन्स हैव come in from the 12% decline in the dollar against major currencies. तो एक वैल्यूएशन जो गेन है उसका बेनिफिट मिला है. उसके साथ आरबीआई हैज आल्सो बॉट डॉलर्स. और लास्ट 2-3 हफ्ते में एक उल्टा फेनोमेना हुआ है बिकॉज वहाँ पे डॉलर हैज अगेन इंक्रीज्ड. सो उसका एक वैल्यूएशन लॉस आया है. उसके साथ आरबीआई मे हैव आल्सो सोल्ड डॉलर्स इन द मार्केट. अ गुड वे टू अंडरस्टैंड दिस इज बेसिकली जो governor Khud had made a statement on this in one of the monetary policy press conference. इसके अलावा आरबीआई पब्लिशेस द इंटरवेंशन डेटा विद अ 2 month लैग. तो आप जो डेटा है उसको एफएक्स रिजर्व से कंपेयर करोगे उसी टाइम फ्रेम में तो आपको समझ में आ जाएगा कितना वैल्यूएशन इम्पैक्ट है. लास्ट फ्रॉम 2020 द इम्पैक्ट हैज बीन सिग्निफिकेंट बिकॉज ये नॉन डॉलर जो पार्ट है ऑफ द रिजर्व्स इज क्वाइट साइजेबल. इसके लिए उसका वैल्यूएशन इम्पैक्ट आता रहेगा. सो आरबीआई के पास इनफ रिजर्व्स है. आरबीआई के पास आरबीआई कैन आल्सो इंटरवीन थ्रू डेरिवेटिव्स क्योंकि आरबीआई जो एनडीएफ में इंटरवीन करता है, जो एक्सचेंज में इंटरवीन करता है, जो फॉरवर्ड मार्केट में इंटरवीन करता है, इसका इम्पैक्ट एफएक्स रिजर्व में आता नहीं है बिकॉज दीज आर डेरिवेटिव ट्रेड्स एंड those won't impact the FX reserves. They can buy, sell. So RBI के पास enough ammunition है and RBI के पास इतना बड़ा reserves है कि no speculator can think of taking on the RBI. But RBI is not here to artificially make the Indian rupee trade at a value. RBI का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, volatility. और उसमें RBI has done a phenomenal job because as I said, लास्ट एक साल का अगर हम लोग डेटा ले और कंपेयर करें विद अदर करेंसीज, इंडियन रुपी इज वन ऑफ द लीस्ट वॉलेटाइल करेंसीज. इट्स लाइक सेइंग कि हाउ हैज एचडीएफसी डन, राइट? अगर निफ्टी में कंप्लीट bear market है तो HDFC being a frontline stock, it will also be under pressure. The same thing is like the Indian rupee. यहाँ पे Indian rupee against the dollar is not important. Indian rupee against अदर करेंसीज इज इम्पोर्टेंट. इसका कितना वॉलेटाइल है, क्या ये कितना अप्रिशिएट किया है अगेंस्ट अदर करेंसीज, इसको देखने के बाद ही वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द करेंसी इज डूइंग ओवरऑल. we'll take a few more questions. टाइम एक्सटेंशन का देखिए अभी भी बात चल रहा है, सो वी आर होपफुल दैट समथिंग कंस्ट्रक्टिव विल कम आउट बट नो क्लियर information on that as of now. Implied volatility का source actually देखिए, implied volatility comes from, यहाँ पे question ये है, what is your source of implied volatility, the charts you are posting daily in the channel. The question is channel, actually हम लोगों का कोटक सिक्योरिटीज का काफ़ी एक एक्टिव टेलीग्राम चैनल है which is currency corner @Kotak Securities. तो आप अगर उसका ऑलरेडी पार्ट नहीं हो तो यू कैन इजीली बिकम अ पार्ट बिकॉज इट हैज़ क्लोज टू 21,000 members. It's a growing family. And वहाँ पे we keep on posting various trades and ideas and views, option strategies, various kind of things. So आप अगर आपको वहाँ से काफ़ी benefit मिल सकता है. So if you're not a part of it, you can become a part. Actually, देखिए जो implied volatility का charts होता है वो मैं खुद ही Excel में, as I said, I created a code using Visual Basic Excel और मैं live price उसमें feed होता है, इसके साथ वो accordingly it calculates automatically. So that's how you can also do. Just write the entire Black-Scholes का जो formula है using the VBA Excel और फिर उसको कोई लाइव प्राइस जो आपके पास आता होगा एक्सचेंज में उसको कनेक्ट कर लीजिए तो यू विल बी एबल टू गेट द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. क्रॉस करेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि इट्स नॉट सो लिक्विड. हाँ, क्रॉस करेंसी में दैट इज द इशू बिकॉज करीब I would say 90% of the market volume is still on NSE is USD INR और जो भी 10% वॉल्यूम्स है वो यूरो और जीबीपी में है. बाकी JPY INR, यूरो डॉलर, जीबी डॉलर, these are not yet liquid. Yes, we are in talks with the exchange कि इसमें कैसे liquidity improve किया जाए. We'll take one final question before we end.
Thank you, Pinaki, for your compliments. What will be the impact on the market if the market is open till 11:55, मतलब commodities की तरह? देखिए उसमें क्या होगा ना कि we'll be able to capture large part of the US session entire of the Europe. तो उसमें जो gaps होता है, जो morning gaps होता है वो generally should become much lower. So from that standpoint, it is better to have an extended market. But again, as I said, the talks are on with the exchange, with the regulator, with RBI. जैसे ही वहाँ से कोई green signal आएगा, we will be able to announce it. So that's it, folks. Thank you once again for being here and posting your questions. We'll be back with more episodes on option trading. In fact, हम लोग बात करेंगे how you can analyze the option open interest. तो उससे भी काफ़ी clues आपको मिल सकता है. We have in fact talked about it in our Telegram channel आज ही कि कैसे 83 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट और 82 हाफ का पुट का ओपन इंटरेस्ट कैन create a major move in the market. So again, if you are not part of the Telegram channel, kindly become a part of the channel. It is Currency Corner @ Kotak Securities. Kotak Securities का emblem है, and it is a verified channel. So hope to see you there. So with this, I conclude and have a fantastic day ahead.